We start with the actual program. I would like to request you to keep quiet Volume. and to maintain discipline so that we can smoothly proceed with the program. Today we are Mr. Jagannath Latrala. He was he is an ex-Navodaya and 1998 last year pass out. And he studied at JSD Bhutan, which is in Jalgaon district, Maharashtra. So now he has arrived amongst us and he would like to interact with all of you and he would definitely give you some kind of instructions or suggestions about life that will definitely work you or help you in your future. So before we start, I'd like to request our children to welcome Sir with the bouquet. सीधे बड़ा I would like to request to welcome our respected principal ma'am with the bouquet. Principal ma'am to welcome him into our history. Most respected guests of this evening, Sri Jagannath Ji, respected colleagues and most lovely children. It's really a unique opportunity for us to have one of the alumni of LPS. Previously, we had successful ex-Navodaya in the field of materialism like doctors, engineers and other professionals. But today we have one special person having depth in the field of spiritualism. We are really grateful to you, sir, for your kind visit to our institution. Actually, he has visited many other Navodayas, and yesterday our Vice Principal, sir, you must be remembering him, that he contacted me over phone and intimated me regarding his visit to this institution. And taking a lot of pain, he traveled a long distance and came here to interact with you, to share his pearl of wisdom with you. So before starting, I would like to highlight his talent as a ex-Navodaya, that in 10th standard in 1998, he was the first rank holder in the school. Then in class 12, he pursued his study in Nashik Division Board, Maharashtra in 2000 and he secured second rank in science stream. He pursued his career as a lecturer in 3 engineering colleges in Mumbai and Pune University. Then he found spiritualism, and for the last 12 years he is a full-time devotee of ISKCON Mumbai. He must be idea about ISKCON people, ISKCON, that is International Society for Krishna Consciousness,
for spreading the spiritual knowledge and guiding the students in school and colleges in life values, skills all over the country. Till now, he has visited 86 jails. He has already visited 86 jails of 8 states of 3 LBS regions, that is Odisha, Andhra Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Goa, Karnataka and Kerala, and 3 union territories in the last 1 year. Within 1 year, he visited these villages, and this shows his dedication towards LBS, the motto that is, come to learn and go to serve. The way of service may be different, but his way of service is also praiseworthy. I welcome you, sir, to this institution with great humility, and I assume that your interaction with the children will be highly beneficial for the children, and I request the children to maintain discipline and listen to be sincerely with much patience and to enhance the opportunity, the unique opportunity. Thank you. So I will hand over the mic to sir to start the introduction. Thank you, madam, for welcoming me at Jawahar Navodaya Vidyalaya of our this district is Fulbani of Odisha state, because I am constantly traveling, so sometimes new places names are not so easy to remember. Fulbani. Tudi Pazu, what is that? Tudi Pazu, yes, Tudi Pazu, yes. Am I audible? Last girls, last boys, audible? Sound audible? Can you listen me? Because only one speaker, one corner, so difficult to have uniform sound here. Can you listen? Audible? Okay, because one small box is not enough for such a big hall, I feel. But anyway, I will be loud enough so that you can listen. Teachers can listen me? Comfortable? Sound? Okay. So, I will so happy to be with you today being here that Navodaya Vidyalaya is my लाइफ। नवोदय जो है हमारा जीवन है। 26 साल हो गए नवोदय छोड़ के, तब भी हमें नवोदय के सपने आते हैं, नवोदय की याद आती है, नवोदय के शिक्षकों की याद आती है, कभी कभी भोजन की भी याद आती है कि जो हमने भोजन पाया नवोदय में बढ़िया था। हाँ, आज जो मिलता है वो हमें नहीं मिला वो समय। अंडा, चिकन, मटन ये हमने नहीं खाया क्योंकि वो सोचते थे कि ये बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। चाय भी नहीं पिलाया हमको नवोदय विद्यालय में कि बच्चों के लिए चाय अच्छी नहीं है, बच्चों को दूध पिलाएंगे। तो ये विचार कब था? 30 साल पहले, कि बच्चों के लिए अच्छा भोजन, सात्विक विचार उससे आता है। तो ये समाज बदल गया है, लोगों की मानसिकता बदल गई है, लोगों का डिमांड बदल गया है, विचार है ना, भावना बदल गई है। तो ये स्वाभाविक है, हम समझते हैं। लेकिन यदि हमें अपनी बुद्धि है और अपने पास चॉइस चुनने का मौका है कि सही क्या है, गलत क्या है, उत्तम बेस्ट क्या है, तो हमने जो बेस्ट है, जो उत्तम है उसे लेना चाहिए। ये नहीं कि जो भी मिल गया खा लिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। एनीवे, तो टॉपिक इज आई स्पीक अबाउट लाइफ वैल्यूज़, लाइफ स्किल्स एंड लाइफ साइंस। तीनों में कॉमन क्या है? लाइफ। अपना जीवन जो है सबसे अनमोल है। पैसे का कुछ मोल होता है, सोना चांदी का कुछ मोल होता है, कोई ज़मीन प्रॉपर्टी का कुछ मोल होता है, गाड़ी बंगला, लेकिन सबसे ज़्यादा मोल किसका होता है? अपने जीवन का सबसे ज़्यादा मोल अनमोल है।
आप सभी समझते हैं कि जीवन इतना अनमोल है, दुनिया की सारी संपत्ति बदले में देकर इसको कोई खरीद नहीं सकता, या जो समय चला गया अपने हाथ से उसे वापस नहीं ला सकते, इतना ही अनमोल है। चाणक्य पंडित जो हुए, उनका एक प्रसिद्ध वाक्य है, कोट है कि मनुष्य जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण इतना कीमती है कि वही बात, दुनिया का सब धन बदले में देकर उसे हम खरीद नहीं सकते। एक पल की बात कही है, एक पल, एक क्षण, वन मोमेंट ऑफ लाइफ, सो वैल्यूएबल। वाई? मनुष्य जीवन में हम वो पा सकते हैं जो बाकी जीवन में नहीं होता है। बाकी कौन सा जीवन होता है? पशु जीवन, पंछियों का जीवन, पेड़ पौधों का जीवन, कीड़ों का जीवन, ये भी तो जीवन है। जीवन के कितने जातियां हैं? जीवन की 84 लाख प्रकार है। 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाइफ आर देयर। 84 लाख, ये प्रसिद्ध नंबर है। 84 लाख, 84 लाख दुनिया होती है सजीवों की। केवल पृथ्वी नहीं, पूरे ब्रह्मांड में ये 84 लाख प्रकार के जीव होते हैं। उनमें मनुष्य है। मनुष्य का जो महत्व है सबसे ज़्यादा है। क्यों? जो बाकी योनियों में हमें संभव नहीं होगा वो मनुष्य जीवन में हो सकता है। वो क्या है, हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। तो आज का सेशन जो जीवन के विषय में है, हम सब के लिए और मेरे लिए भी एक विशेष सौभाग्य है कि हम अपने जीवन के विषय में थोड़ा चिंतन करने वाले हैं, जो हमें कहीं सुनने में नहीं मिलता है अपने सिलेबस में, अपने स्कूल कॉलेज में। वो बात हमने समझी है, उससे जीवन का समाधान पाया है, और फिर जो समाधान हमने पाया वो सबको देने के लिए हम बाकी सब कुछ छोड़ के इस सेवा, ज्ञान का सेवा के लिए अपना जीवन दिए हैं। तो मैं चाहूँगा इस सेशन के शुरुआत में हम थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं। हाथ जोड़िए सब लोग सीधे बैठिए, सावधान, अलर्ट, सावधान। जब ज्ञान की बात होती है तो हमें सावधान होना चाहिए, झुकना मना होता है, सावधान, तभी तो बुद्धि जगेगी। ऐसे बैठेंगे तो बुद्धि सो जाती है, मंद हो जाती है। सीधा बैठिए, आंखें बंद कीजिए, साइलेंस। बोलिए। सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिषगमय ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम श्री जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। One more time. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare। You can open the eyes now peacefully. You can feel the freshness of the mind, the light of the atmosphere, divine light. You can feel that. For some time, if you can focus on the holy names of God, the Supreme Lord, holy names, all your anxiety, all your negativity, all your laziness will go away. You will feel divine inspiration, divine satisfaction. That is my personal experience that जब हम भगवान के नामों का कम से कम 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए यदि उच्चार करते हैं तो बहुत शक्ति मिलती है। हम जो बोलते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, हम चलेंगे रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल। दूर अज्ञान के हो हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भली जिंदगी है वही होना किसी का किसी से भावना में बदले होना। हम चले मेरे रास्ते हमसे
हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे क्या है। फूल खुशियों के बांटे सभी को, करुणा का जल तू बहा के कहे पावन हरे। जितनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास हम चले नेक रास्ते से, भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल। आपका भाव, आपकी आवाज़ बहुत शुद्ध है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसलिए मैं खुद गाने से सोचा कि आपका सुने, क्योंकि बच्चों में जो भाव होता है निष्पाप होता है, शुद्ध होता है, भगवान से जुड़ पाते हैं जल्दी। तो हमने आपका सुना भाव और आवाज़। थैंक यू बच्चों। पहली बार ये जो शब्द हैं प्रार्थना के शब्द नवोदय में हमने सुना था, तब से हैं 30 साल से ये नवोदय का 30 क्या, जब से नवोदय चालू हुए तब से ये प्रेयर प्रार्थना नवोदय में गाई जाती है, बच्चों को सिखाई जाती। क्यों? इसकी आवश्यकता है, हमें शक्ति की आवश्यकता है, हमें बुद्धि की आवश्यकता है, हमें संयम की आवश्यकता है, हमें अच्छे ज्ञान की आवश्यकता है। फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथमेटिक्स पढ़ना है, लेकिन केवल उससे अपने जीवन का आनंद नहीं मिलेगा, जीवन का समाधान नहीं होगा। उसकी आवश्यकता है, लेकिन वो क्या बोलेंगे, वो परिपूर्ण नहीं है, संपूर्ण नहीं है, उसमें एक कमी है, उसमें जीवन नहीं है। भौतिक जो विद्या है, भौतिक विद्या, उसमें एक कमी है, उसमें जीवन नहीं है, वो जड़ विद्या है। कौन सी विद्या है? जड़ विद्या, विसे मटेरियल नॉलेज। क्या बोलते हैं? मटेरियल नॉलेज, फिजिकल नॉलेज, भौतिक विद्या। लेकिन विद्यालयों का जो उद्देश्य होता है, विद्यालयों का उद्देश्य भौतिक विद्या के साथ साथ जीवन विद्या भी दी जाए, ये होता है। क्योंकि केवल भौतिक विद्या से जीवन का लाभ नहीं होता है, जीवन का समाधान नहीं होता है। भौतिक विद्या तो कोई व्यक्ति अपने अपने घर में भी पढ़ सकता है, ले सकता है, होता है। आजकल तो हम देख सकते हैं कितना स्पष्ट है कि बिना स्कूल कॉलेज जाए आज लोग होम स्कूलिंग या ऑनलाइन क्लासेस से भी अनेक भौतिक विद्याएं ले लेते हैं। लेकिन जीवन की विद्या, जीवन का विद्या के लिए विद्यालय चाहिए। और नवोदय समिति जानती हैं कि यदि बच्चों को अच्छा महान बनाना है, बच्चों का जीवन उज्ज्वल बनाना है, तो भौतिक विद्या के साथ साथ जीवन की विद्या भी दी जाए। इसलिए तब से 1986 फर्स्ट स्कूल, तब से सुबह 5 बजे उठाना बच्चों को, ये नियम है। 5 बजे उठाना है, बड़ी बात है। आज भी इतने सालों के बाद भी नवोदय समिति ने वो जो विचार है बच्चों को सुबह जल्दी उठाना बंद नहीं किया है, बंद नहीं किया। क्यों? उसकी आवश्यकता है। आप देखिए बाहर के जो स्कूल होते हैं, जहाँ पे डे स्कूल बच्चे होते हैं, डे स्कूल बच्चे, वहाँ पे नियम नहीं लगा सकते, क्योंकि बच्चे आप अपने गांव से आते हैं, आप अपने घर से आते हैं स्कूलों में। तो यहाँ पे जब बच्चे निवासी है कैंपस में, तो समिति जानती हैं कि इन बच्चों को यदि अच्छा बनाना है तो सुबह जल्दी उठाना आवश्यक होगा। जो कहावत है इंग्लिश में,
अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स वन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, बुद्धिमान बनाते हैं। सही में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से जो जीवन शक्ति है, जो बुद्धि है, वो जग जाती है। जो लोग 7 बजे के बाद 8 बजे बाद उठते हैं, उनकी जीवन शक्ति इतनी जग नहीं पाती है, बुद्धि उनकी इतनी जग नहीं पाती है। वो तो बॉडी जग जाएगी, लेकिन जो बुद्धि को चालना मिलनी चाहिए, गति मिलनी चाहिए, वो नहीं होता। तो बच्चों, नवोदय विद्यालय में हम सबका सौभाग्य है कि हमें ये सब मिला है, हमने पाया है, हमको दिया गया शिक्षकों के द्वारा, समाज के द्वारा, अच्छे जीवन, अच्छे शिक्षण के लिए जो आवश्यक था, सब कुछ दिया गया। इसलिए हम समझते हैं कि कुछ अभी बदले में किया जाए समाज के लिए, अपने नवोदय विद्यालय के लिए। इसलिए हम 1 साल से लगभग नॉन स्टॉप, केवल जो वेकेशन होती है वो समय ब्रेक होगा। अभी 1 साल लगभग हो चुका है कि मैं 1 साल से, जब मुझे पुणे डिवीज़न के असिस्टेंट कमिश्नर सर, लाड सर एक जगह मिले थे, मुझे हमेशा डाउट था कि मुझे नवोदय विद्यालय में प्रवेश मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी मैं साधु बना हूँ तो सोचेंगे भाई आप तो साधु के वेश में कैसे आ सकते हो, ये सेकुलर स्कूल है, ऐसा मुझे लगा था, गवर्नमेंट स्कूल है। लेकिन जब समिति के जो अपने असिस्टेंट कमिश्नर सर खुद बोले ऐसी बात नहीं है, हम जीवन को समझते हैं, हम जीवन का जो विद्या है उसे जानते हैं, और आप भी जो है क्वालिफाइड हो, अपने बैच के टॉपर हो और एक अच्छी सेवा में लगे हो सब जगह समाज में, तो नवोदय विद्यालय में भी जाइए, वहाँ आपका स्वागत होगा और वहाँ बच्चों को बड़ा लाभ होगा। ये उनके शब्दों से मुझे प्रेरणा मिली, और मैं जब जाने लगा तो नॉन स्टॉप मुझे अच्छा अनुभव आया है कि मैं आज 8 राज्यों में जा चुका हूँ, उड़ीसा के 12 जिले हो गए हैं लगभग, मैं गया हूँ। तो बच्चों, ये जीवन का जो विद्या है, जीवन का ज्ञान जो है, ये सबसे अनमोल है कि जिससे अपने जीवन का समाधान आनंद में मिल सकता है। कब मिलेगा? वेटिंग की आवश्यकता नहीं, बाद में मिलेगा सर। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड, the moment you understand this knowledge, you will get all the joy of life, you will get all the satisfaction of life. That is my personal experience. जब मैं पहली बार बीटेक के समय भगवत गीता पढ़ा, भगवत गीता सुनने में आया, बीटेक के समय मुंबई में कॉलेज था, VJTI कॉलेज, जहाँ मैं बीटेक किया मैकेनिकल ब्रांच में। 2000 साल एडमिशन लिया था, 2004 में पास आउट हो गया था। तब मुझे आत्मज्ञान, अध्यात्म विद्या, जिसका शुरुआत नवोदय से हुआ था, लेकिन उसका जो क्या बोलेंगे टॉप, मतलब ना एंड, वो बीटेक के समय हुआ जब गीता पढ़ने में आई, भगवत गीता। बेसिक्स मिले थे नवोदय विद्यालय में, लेकिन बेसिक्स के बाद जो एक आवश्यक था ना, कंप्लीट नॉलेज, वो हमें बीटेक के समय मिला, और जीवन का बड़ा आनंद पाया, समाधान पाया, और सोचा कि जिस ज्ञान से हमें समाधान मिला, क्या आनंद मिला, वो सबके लिए आवश्यक है और सबके लिए बांटना चाहिए। तो हम लोग 8 साल टीचिंग जॉब किए, कंपनी नहीं गए, ताकि बच्चों को कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ भी ये जीवन का ज्ञान दिया जाए। और बाद में जब देखा कि अपना स्वभाव जो है सोशल लाइफ है, सोशल नेचर है, इसलिए हमने शादी नहीं की, और फिर फुल टाइम ज्ञान के प्रचार के लिए लगे हैं। ISKCON जो संस्था है मुंबई में, वह हम जुड़े 2012 में, और एक सेवा का जो अवसर मिला है उसमें हम लगे हैं। तो बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिए, कुछ बेसिक पॉइंट्स है जिससे आपको बहुत लाभ होगा। बच्चों की समस्याएं होती सर, हमें आजकल पढ़ाई में सर कंसंट्रेशन नहीं होती सर, फोकस नहीं होता। जब पढ़ने को बैठते हैं तो मन लगता नहीं सर, मन को बहुत भटकने का है ना आदत लग गई है। ऐसे बच्चों का यहाँ पे कुछ समस्या है कभी? हाँ, यहाँ नहीं होगा, यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं ना,
कोई समझता नहीं। जैसे हम तो एकदम मस्त, पढ़ने में इतना मन लगता है कि पढ़ने का, है ना, पढ़ने के अलावा कुछ समझता ही नहीं है, हम पढ़ते जाते सर, ऐसा कुछ है। तो बच्चे में होता है कि सर पढ़ाई में थोड़ा सा इतना उत्साह नहीं आता है, मन नहीं लगता है, हमें फोकस नहीं हो पाता, ऐसी समस्या होती ना, होती है। कभी अनावश्यक चिंता आती है, अनावश्यक कभी कभी एग्ज़ाम्स का भय लगता है, और माता पिता भी जो बोलते रहते हैं हमेशा, अच्छा पढ़ो, अच्छे अंक लाना है, कम अंक आए हैं, बोलते रहते कभी माता पिता बोलते रहते हैं। तो उसका भी थोड़ा तनाव आता है कि हम तो पढ़ते हैं, हम तो है ना मेहनत लेते हैं, लेकिन कभी कभी अंक नहीं आते हैं, तो चिंता होती है माता पिता क्या बोलेंगे, उनको कैसे बताएंगे, क्या समझाएंगे। ऐसा होता है बच्चों को वो कुछ होता है ऐसा समस्या। माता पिता की अपेक्षाएं होती हैं, समाज की अपेक्षाएं होती है, और हमसे इतने अंक नहीं आ पाते हैं। तो बच्चों, इसके लिए मैं कुछ बताऊंगा आपके लिए जिससे आपका लाभ हो सकता है, तो ध्यान दीजिए। नवोदय समिति ने पहले ही बोल दिया है कि अपने शिक्षा के लिए, अपने विद्यालय के लिए जो अपना समय है पढ़ने का, तो उसका मोटिवेशन क्या होना चाहिए। तो बोल दिए सिंपल वर्ड्स में, कम टू लर्न, शिक्षा के लिए आइए, ज्ञान के लिए आइए। ये बड़ी बात है समझने के लिए, कम टू लर्न। देखिए, केवल एग्ज़ाम्स का सोचोगे, केवल मार्क्स का सोचोगे, केवल परसेंटेज का सोचोगे, पोजीशन क्या मिलेगा मुझे, तो इतना मन नहीं लगता है, फिर चिंता होती है, वो आएगा नहीं आएगा, होगा नहीं होगा, कभी तनाव आता है। लेकिन जब हमें सीखना है, हमें समझना है, हमें ज्ञान लेना है, कुछ अच्छा, है ना, जो किताबों में दिया गया है उसे पढ़ना है, तो ये जब मोटिवेशन होगा तो आपके मन के लिए तनाव नहीं होगा, आपका मन हल्का होगा कि बस थोड़ा देखना है, थोड़ा समझना है, थोड़ा पढ़ना है। देखिए, जब अच्छा ज्ञान लिया होगा, अच्छा समझा होगा कोई विषय, तो हमें एग्ज़ाम्स में अंक भी आएंगे, अच्छे परसेंटेज भी आएंगे और पोजीशन भी आएगा। लेकिन बच्चों, केवल अंकों में, केवल परसेंटेज में, मार्क्स में सुख नहीं मिलता, ये ध्यान दीजिए। हम खुद अपनी बैच के क्लास के टॉपर हमेशा थे, बचपन से कॉलेज तक, लेकिन हमने पाया कि केवल अंकों में सुख नहीं है। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? डांस प्रैक्टिस है, तो कुछ बच्चे हैं तो keep sitting, don't move now, keep sitting, no problem, be comfortable। ये क्या एकदम क्या हुआ, मुझे लगा कि ना सब लोग बच्चे उठ रहे थे, तो यस, तो हमने पाया है कि केवल अंकों में, पोजीशन में, मार्क्स में, परसेंटेज में सुख नहीं मिलता है। बस एक दो दिन का एक्साइटमेंट होता है कि लोग ताली बजाएंगे, बस बोलेंगे पार्टी दो, इतना बोलेंगे, बाद में भूल जाएंगे सब। लेकिन बच्चों, जब हमने जो मोटिवेशन था ज्ञान लेने का, कुछ अच्छा सीखने का, कुछ अच्छा समझने का रखा था, तो हमें अंकों के साथ साथ समाधान भी मिला, और कभी तनाव इतना नहीं आया। थोड़ा तनाव तो आता ही है, स्वाभाविक है, लेकिन जब आप अपेक्षा नहीं रखेंगे, अपेक्षा इतने मार्क्स आने चाहिए, इतना, तो अपने हाथ में नहीं है। अपना काम है प्रयास करना, कोशिश करना, पढ़ने के लिए, अच्छा एग्ज़ाम देने के लिए। यदि हो भी ना पाए कभी, सब बहुत मेहनत की सर, बहुत हमने पढ़ाई किया, बहुत अच्छा हमने कोशिश किया, लेकिन नहीं आया अंक, तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आज देखिए, केवल अंकों में कोई सक्सेस नहीं होता है। हमें समझना चाहिए, यश जो होता है, कामयाबी जो होती है, अंकों से नहीं होती है। सक्सेस ये जीवन के विषय में है, जीवन के विषय में। जो व्यक्ति किसी भी समस्या के लिए, किसी भी संकट के लिए तैयार है, अपनी हिम्मत कभी कम नहीं करता है, जिसका हौसला कभी कम नहीं होता है, जिसकी जो
जिसका आत्मविश्वास जो है कभी डगमगाता नहीं है, कम नहीं होता है, जिसका खुशी जीवन का आनंद जो है, समाधान, वो कम नहीं होता है, वो व्यक्ति कामयाब है, सक्सेस है। क्योंकि जीवन में जो कुछ मिलता है हमें, वो अपनी इच्छा से और अपने मन के अनुसार नहीं मिलता है। समय के अनुसार कभी हमको कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा, कभी नहीं आएगा, वो अपने हाथ में नहीं होता है। अपने हाथ में क्या है? प्रयास करना। जो अपनी ड्यूटी है, जो अपनी ड्यूटी है पढ़ने का, स्टडी का, वो करना चाहिए। भगवत गीता में भगवान खुद बताए हैं कि अपनी ड्यूटी, अपना कर्म कैसे करना चाहिए। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है 2 अध्याय में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगस्तु अकर्मणि। कभी सुना है आपने? और महाभारत की जब टीवी पे चलता था सीरियल, तब ये आता था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब क्या है कि हमें पूरा अधिकार है किसका? अपने कर्तव्य को, अपने ड्यूटी को करने का। जो अपनी जिम्मेदारी है, जो अपना कर्तव्य है, ड्यूटी, उसे निभाने का अपना पूरा अधिकार है। लेकिन जो फल मिलेगा, रिजल्ट, उस पे अपना अधिकार नहीं है। हम अपेक्षा नहीं कर सकते, मैडम को बोल नहीं सकते, मैडम मैंने रोज़ 10 घंटा पढ़ाई किया है, मुझे इंग्लिश में 90+ मार्क्स मिलना ही चाहिए, ऐसे हम डिमांड नहीं कर सकते। या मैथ्स को हम नहीं बोल सकते टीचर्स को, मैथ्स टीचर को, कि मैडम हमने, टीचर सर हमने 12 घंटे पढ़ाई किया रोज़, हमें 95+ मार्क्स आना ही चाहिए मैथ्स में, ऐसे डिमांड नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? जब अपनी ड्यूटी है पढ़ने का, एग्ज़ाम देने का, वो कर सकते हैं। रिज़ल्ट जो भी आए, यदि हमने सही भावना में, सही रूप से अपना प्रयास किया होगा तो हमें समाधान मिलेगा। बच्चों, दुख कब आता है, चिंता कब आती है, तनाव कब आता है? जब हम अपेक्षा बना लेते हैं, एक्सपेक्टेशंस, मुझे इतना मिलना चाहिए, मुझे ये होना ही चाहिए, अपेक्षा है। देखिए, जीवन में जो आवश्यक है, जीवन में जो आवश्यक है, वो बिना मांगे भगवान की कृपा से सबको मिलता है। जीवन आवश्यक, हम वो देखते नहीं हैं, हम वो समझते नहीं हैं कि जीवन आवश्यक जो भी मिलना था भगवान पहले से दिए हैं। हम ये सोचते हैं कि ये भी मिलना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए, ये समय मिलना चाहिए। तो जो आवश्यकताएं नहीं होती है, उनकी इच्छाएं, उनकी अपेक्षाओं से हमें तनाव आता है, दुख आता है, समस्या आती है। एग्जाम्पल देता हूँ। जीवन आवश्यक क्या है बच्चों? जीवन आवश्यक है भोजन, जीवन आवश्यक है जल, जीवन आवश्यक है हवा, वायु, जीवन आवश्यक है शरीर, बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, जीवन आवश्यक है सूर्य प्रकाश, सनलाइट, सूर्य प्रकाश। और क्या आवश्यक है? माता पिता, समाज, भूमि, ये सब कुछ बिना मांगे हमें दिया गया है, मिला है। तो बोलते हैं वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ में, मूल्यों में सबसे ज़्यादा मूल्यवान कोई वैल्यू है, वो है कृतज्ञ होना। कृतज्ञ होना, हमें जो कुछ मिला है, जो दिया गया है, उसके लिए कौन दिया है थोड़ा समझना। अपने आप कुछ नहीं मिलता है किसी को, बाय चांस मिलता है किसी को, अपने आप मिलता है, ऑटोमेटिक नहीं। हमें जो कुछ मिलता है जीवन में, दुनिया में, कोई तो हमें देता है। और देखना चाहिए, समझना चाहिए कौन हमें दे रहा है, और उसके प्रति आभार की भावना होनी चाहिए, धन्यवाद की भावना होनी चाहिए। वी मस्ट बी ग्रेटफुल, थैंकफुल टू दी सुप्रीम लॉर्ड। भगवान को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान
आपकी कृपा से हमें जीवन मिला है, आपकी कृपा से हमें ज्ञान, बुद्धि, शक्ति, मनुष्य जीवन मिला है, तो ये समझना चाहिए। देखिए, जिन लोगों को एक कृतज्ञ भावना होती है, कृतज्ञ, फीलिंग थैंकफुल, फीलिंग ग्रेटफुल, they are more happier, they are more peaceful, they are more focused in their life। जो लोग हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं, कंप्लेंट, ये नहीं मिला सर, वो नहीं मिला, ये ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ, क्यों? क्योंकि वो लोग जो मिला है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, जो थोड़ा बहुत चीज़ नहीं मिलता है कभी, उस पर ध्यान देते ज़्यादा, इसलिए दुखी होते रहते हैं। बच्चों, आपने जैसे बताया, इस जगत में, दुनिया में सबसे अनमोल क्या है? अपना जीवन। इतना अनमोल है कि उसकी तुलना नहीं हो सकती दुनिया की सारी संपत्ति में, धन में। और जीवन कौन दिए हैं? भगवान देते हैं। इसलिए बोलते हैं, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा। ये भी आपने सुना होगा, हमने भी नवोदय में सुना था, नवोदय में गाया था। तो हमने एक आदत बना ली थी। बच्चों ध्यान दीजिए, यदि आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो मुझे बोलने का इतना उत्साह नहीं आएगा, क्योंकि मैं यहाँ ये छत जो है दीवारों से बात करने नहीं आया हूँ, मैं आपसे बात करने आया हूँ। तो यदि आप ध्यान से सुनोगे नहीं तो मुझे इतना बोलने का उत्साह नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, थोड़ा समय है, अपने जीवन की बात है तो समझिए। मुझे एक आदत था, इतने अच्छे अच्छे कोर्स लगे हैं सब जगह, उड़िया में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है। मुझे एक आदत था, यदि इतना सुंदर रूप से बनाकर उसे इतने अच्छे से लगाया गया, एक साइज़ में, एक लाइन में लगाया गया है, तो उसका उद्देश्य है, हमें कुछ तो बताने का उद्देश्य है, समझाने का उद्देश्य है। पढ़ना चाहिए। विद्यालय में होता है, मेस में होता है, पूरे कैंपस में कोर्स लगे होते बहुत जगह। क्यों? सुविचार, गुड थॉट्स, अपना जीवन को महान बनाने के लिए एक एक जो वाक्य होते हैं ये बहुत काम के होते हैं। जैसे बताया, कम टू लर्न, सिंपल वर्ड्स, बट वी कैन हैव द लाइफ टाइम मोटिवेशन, लाइफ टाइम इंस्पिरेशन। लर्निंग विल गिव यू एब्जॉर्प्शन, आपको लगन आएगी पढ़ने में, मन आप लग सकते हैं, आपका मन लगेगा पढ़ने में। क्यों? अंकों का विचार नहीं है, अंकों की अपेक्षा नहीं है, ज्ञान लेना है, सीखना है, समझना है, उसमें मन लगता है। और कितने समय पढ़ सकते हैं? नो लिमिट, यू हैव द ऑल स्कोप। अपनी लाइब्रेरी में इतनी किताबें होती हैं, हजारों किताबें होती हैं, हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, खोल सकते हैं। कोई आपको रोकेगा नहीं वहाँ पे कि नहीं ये पाप है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, कोई ऐसा बोलेगा नहीं। क्योंकि ज्ञान लेना, सीखना ये अच्छी बात है। कम टू लर्न। और देखिए, लर्निंग का मोटिवेशन भी क्या है? केवल अर्निंग मनी नहीं है, पैसा कमाना नहीं है मोटिवेशन। समिति जानती है, पैसा तो आएगा, अपने आप आएगा। कोई व्यक्ति ज्ञान लेकर सेवा की भावना में जीता है तो उसे बिना मांगे, बिना कोई अपेक्षा के धन भी मिलता है, पैसा भी मिलता है। तो समिति ने कहा, क्या कहा है गाइडलाइन? कम टू लर्न एंड देन गो टू सर्व। बहुत सोच समझ के लिखा है गाइडलाइन, गो टू सर्व। व्हाई? बिकॉज सेवा के बिना किसी का जीवन महान नहीं बनता, सेवा किए बिना। इसलिए जॉब को भी बोलते हैं इंग्लिश में सर्विस। जॉब को क्या बोलते हैं? देखिए, जॉब तो किसी को इतना अच्छा नहीं लगता है, जॉब में जाना, काम करना, लेकिन सेवा की जो भावना होती है, नहीं ये अपना सेवा है। जब बोलने में भी जो सेवा बोलती है सेवा है, तो अपना मन को एक आनंद आता है कि मैंने सेवा किया है। और जो व्यक्ति बस मैंने जॉब किया, मैंने काम धंधा किया है, तो उसमें थक जाते हैं, उसमें तनाव आता है, उसमें इतना इच्छा नहीं होता है। लोग कम से कम काम करना चाहते हैं, लेकिन सेवा का विचार यदि होगा
तो बिना बोले हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, हमें प्रेरणा मिलती है नहीं, क्योंकि सेवा का ऐसा भाव है जिसमें आत्मा को समाधान होता है। थोड़ी लाइफ साइंस की बात लेते हैं कि हम जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, बच्चों ध्यान दीजिए। यस बेटा, क्या हुआ, ध्यान दीजिए। लाइफ साइंस, आप बोलेंगे सर हम तो पढ़ते हैं बायोलॉजी। बच्चों, उस बायोलॉजी में दुर्भाग्यवश मन के विषय में कुछ नहीं है, बुद्धि के विषय में कुछ नहीं है कि मन का संयम कैसे किया जाए। जो मन में इतनी इच्छाएं आती है, कभी अच्छी आती है, कभी गलत आती है, निगेटिव थॉट्स आते हैं, उनका संयम कैसे किया जाए, उनका संयमन, नियमन कैसे किया जाए, रेगुलेशन। जो अपनी बुद्धि है उसका विकास कैसे किया जाए, बुद्धि को कैसे जगाया जाए, वो तो बायोलॉजी में कोई बताता नहीं है। अहंकार, ईगो इज अवर, है ना, आइडेंटिटी। ईगो अपनी क्या है, पहचान है कि हम जो समझते हैं हम ये हैं, हम वो हैं, स्टेटस ईगो, वो भी उसके विषय में बायोलॉजी में कुछ नहीं है। मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीन तत्वों के विषय में कुछ नहीं है। और जिसके वजह से जीवन है, जिसके वजह से जीवन लाइफ है, उसका उल्लेख भी नहीं है। आप बताइए मुझे, जीवन का जो कारण है, जीवन का कारण बॉडी नहीं है, आत्मा है, जीव है, जो बोलते हैं जीवात्मा। जब तक जीव है बॉडी में तो बॉडी को बोलते हैं सजीव। क्या बोलते हैं, सजीव। और जिस बॉडी में जीव नहीं होता उसे बोलते हैं निर्जीव। यस, बच्चे समझते हैं, लिविंग, नॉन लिविंग। यस, सजीव, निर्जीव। तो हम सबके बॉडी में क्या है, जीव है, आत्मा है। यस, देखिए थोड़ा समझिए, जो आपकी समस्याएं होती हैं पढ़ने में, अपने मन में, अपने जीवन में, उसका समाधान आपको मिल जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए कि अपना शरीर जो है, शरीर, बॉडी अपनी, ये हमेशा बदलती रहती है। आपका अनुभव है, जब आपने जन्म लिया उसकी फ़ोटो होगी, माता पिता ने बड़े खुशी से फ़ोटो निकाला होगा आपका, बचपन का फ़ोटो, जन्म का फ़ोटो, पहला जन्मदिन का फ़ोटो होगा, हैप्पी फर्स्ट बर्थडे फ़ोटोज़, वो देखिए। और आज की जो बॉडी है उसकी फ़ोटोज़, लेटेस्ट फ़ोटो, वो देखिए। बॉडी हैज चेंज इन साइज, इन शेप, इन फॉर्म, इन लुक, बॉडी हैज चेंज, बट द पर्सन इन द बॉडी हैज़ नॉट चेंज। जो व्यक्ति शरीर में है वो नहीं बदलता है। इसलिए माँ बाप क्या बोलते हैं कि जो बच्चा जन्म लिया था वही बच्चा भी कहाँ पे है, नवोदय में है, नवोदय में गया अभी। ये नहीं बोलेंगे कि जिसने जन्म लिया था वो अलग था, अभी जो नवोदय में गया है वो अलग है। केवल बॉडी बदलने से व्यक्ति नहीं बदलता, क्योंकि अपनी पहचान जो है बॉडी से नहीं है, अपनी पहचान आत्मा से है। जब तक आत्मा होता है तो संबंध बने रहते हैं, संबंध बने रहते हैं। हम कितने बूढ़े हो जाए, हम व्यक्ति वही होते हैं जो संबंध होते हैं एक दूसरे से, भाई से, बहन से, अपनी फैमिली से, माता पिता से, वो संबंध बने रहते हैं। तो बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं ये विषय में बोलता हूँ कि अपने इंद्रियों को, अपने सेंसेस, ऑल ओवर सेंसेस ना, इंद्रियाँ, इनका संयमन, सेंस कंट्रोल, इंद्रियां संयम कैसे आए, अपने मन पे संयम कैसे आए, अपनी इच्छाओं पे संयम कैसे आए, इसके लिए बोलता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। साइंस ऑफ लाइफ जो वेदों में बताया गया है, वैदिक साइंस में बताया गया है, मॉडर्न साइंस में क्यों नहीं है? कि मॉडर्न साइंस का जो आधार है, बेसिस, वो भगवान नहीं है, भगवान का जो ज्ञान है वो नहीं है। मॉडर्न साइंस का आधार ह्यूमन रिसर्च है, ह्यूमन रिसर्च, कि मानव संशोधन से जो मानव को समझ में आया वो मॉडर्न साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। और ये कितना साल पुराना है मॉडर्न साइंस? 200 से 300 साल पुराना है।
लेकिन बच्चों, जब दुनिया बनी, जब ब्रह्मांड बने, जब असंख्य ग्रहलोक बने ब्रह्मांडों में, तब भगवान ने ब्रह्मदेव को ज्ञान दिया था वेदों का। ब्रह्मदेव इस ब्रह्मांड में पहले जीव होते हैं जिनका जन्म भगवान के नाभि से जो कमल निकलता है, कमल के ऊपर होता है। तो ब्रह्मदेव को प्रश्न पड़ा था कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरा ड्यूटी क्या है। तो भगवान ने उनको तपस्या के लिए कहा। उन्होंने तपस्या की 1000 वर्ष अपने कमल के आसन पर ब्रह्मलोक में, और फिर भगवान प्रसन्न होकर उन्हें ज्ञान देते हैं। किसका? वेदों का। वही ज्ञान की वेद की किताबें जो हैं माता देवी सरस्वती के हाथ में हम देखते हैं। आपने देखा होगा फोटो में कि माता सरस्वती के हाथ में क्या होते हैं? ग्रंथ होते हैं। वो कौन से ग्रंथ हैं? वेद होते हैं। ब्रह्मदेव के हाथ में वेद होते हैं, माता देवी सरस्वती के हाथ में वेद होते हैं। क्यों? मूल विज्ञान, मूल शास्त्र, ये वेद शास्त्र हैं। इसलिए अपने वेद को क्या बोलते हैं? शास्त्र बोलते हैं। शास्त्र मतलब क्या है? साइंस। बोले अपने शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र मतलब क्या होता है? साइंस। और ये साइंस कभी बदलता नहीं है, इसमें अपडेट नहीं होते हैं, इसमें चेंजेस नहीं होते। क्यों? ये भगवान दिए हैं। भगवान के ज्ञान में कभी कमी नहीं होती है, कोई इसमें दोष नहीं होता है, कोई इसमें अपूर्णता नहीं होती। इसलिए वो वेद तब से इस समाज में चले आए हैं। हाँ, बहुत जो वेदों का भाग है अभी नष्ट हो गया है समय के प्रभाव में, लेकिन जो भी वेद का जो भाग है वो एज इट इज़ है। देखिए, जो एक मेडिकल कोर्स होता है BAMS, बैचलर्स इन आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BAMS, उसका आधार क्या है? BAMS कोर्स का आधार आयुर्वेदा है। कौन सा है? आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा क्या है? वेदों का एक भाग है। तो बच्चों, वेदों में फिजिक्स भी था, केमिस्ट्री भी है, लाइफ साइंस भी है, मेडिकल साइंस भी है, सब कुछ है। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, और सबसे इम्पोर्टेंट है अध्यात्म शास्त्र, स्पिरिचुअल साइंस। स्पिरिचुअल साइंस, अध्यात्म शास्त्र, वो भी वेदों में मुख्य रूप से दिया गया है। तो ध्यान दीजिए, सिंपल आसान शब्दों में बोलता हूँ कि अपना जीवन जो है वैदिक साइंस के अनुसार एक जर्नी है। लाइफ इज जर्नी। अपना जीवन क्या है? एक सुंदर सफ़र है। एक जगह चालू हुआ है और एक दिन एक जगह ख़त्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा तक सर भटकना ही है, घूमते रहना है, ऐसा नहीं है। हम एक जगह से निकले हैं, एक दिन अपने जगह पे वापस पहुंचना भी चाहिए। बच्चों, आप लोग स्कूल में पहले से हैं या स्कूल में आए हैं? नहीं सर, जब से स्कूल चालू हुआ तब से हैं स्कूल में, ऐसा कोई है? आप लोग स्कूल में आए हैं, कब आए हैं स्कूल में? 6ठी में आए हैं, 6th क्लास में, है ना? ध्यान दीजिए, आप लोग कहाँ से आए हो? तो क्या क्वेश्चन पूछते हो? आप अपने गांव से आए हैं? आप अपने गांव से आए कि नहीं? आपको याद है या आप भूल गए अभी कहाँ से आए हो? भूल गए तो क्या होगा? यदि भूल गए कि मैं कौन से गांव से आया हूँ, मैं अपना गांव कहाँ है, अपना घर कहाँ पे, माता पिता कौन है, कितनी बड़ी समस्या होगी ना, बहुत समस्या होगी। जब वेकेशन लगेगी सब बच्चे अपना बैग लेके जाएंगे अब अपने गांव, और जो भूल गया है वो सोचते बैठेगा कि मैं कहाँ जाऊँ अभी। इसको पूछेगा तू कहाँ जा रहा है, इसको पूछेगा, इसको पूछोगे कहाँ जा रही है, तो बड़ी समस्या होगी यदि भूल गए तो। बच्चों, आपको अपने गांव जाने में दुख होता है, भय लगता है, भय से क्यों जाऊं, ऐसा लगता है कभी? आप जाना चाहते हैं, आप तो प्रतीक्षा करते हैं कब छुट्टी लगेगी, कब हम अपना बैग लेके भागेंगे। 2-3 दिन से पैकिंग होता है बैग का। तो बच्चों, बोलने का मतलब ये है, हम जहाँ से आए हैं वो जगह को हम भूलते नहीं हैं, क्योंकि अपना संबंध वहाँ पे है और वहाँ जाने के लिए हमें खुशी होती है, इच्छा होती है। क्यों? अपना सुख वहाँ पे है। हम स्कूल में आए हैं थोड़े समय के लिए, अच्छा ज्ञान लेने के लिए, अच्छा बनने के लिए, लेकिन अपने गांव को हम भूलते नहीं, अपने घर को भूलते नहीं हैं बच्चों। लेकिन जीवन के विषय में ऐसा हुआ है
हम दुनिया में तो आए हैं जन्म लेकर, लेकिन हम कहाँ से आए हैं ये हम नहीं जानते, हम भूल चुके हैं। ये अपने जीवन का अनुभव है। जन्म तो लिए हैं, दुनिया में तो आए हैं जन्म लेकर, हम दुनिया में पहले से नहीं हैं। आप सबको पता है, आप इस दुनिया में, इस बॉडी में जन्म लेकर कौन से दिन आए हैं? कौन से दिन आए हैं आप लोग? बर्थडे, जन्मदिन के दिन आए हैं आप। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, सोचिए, ये भी तो एक सवाल हो सकता है, जन्म से पहले हम कहाँ थे, हम कहाँ से आए हैं, ये भी तो सवाल हो सकता है, क्योंकि हमें एक दिन जाना भी पड़ता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि आ गया तो हमेशा के लिए है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। बच्चों, बोलने का उद्देश्य यही है, हेतु यही है कि हमें कम से कम एक बार पता होना चाहिए कि जीवन के विषय में हम कहाँ से आए हैं, और फिर समझ में आएगा अंत में कहाँ जाना चाहिए। अभी क्या होता है, जब हमें पता नहीं है कि हम कहाँ से आए हैं, तो हमेशा हमें जाने का भय होता है, जाने का दुख होता है, जाने की चिंता होती है। कोई जाना नहीं चाहता, दुनिया छोड़ना कोई चाहता नहीं है। क्यों? हम भूल गए हैं हम कहाँ से आए हैं। जैसे जो बच्चा भूल गया मैं स्कूल में कहाँ से आया हूँ, अपने गांव को भूल गया, अपने माता पिता को भूल गया, उसे जाने का दुख होगा, चिंता होगी ना, पता ही नहीं है कहाँ जाऊँ, उसे भय होगा। तो बच्चों, बोलने का उद्देश्य यही है, अपने जो वेद शास्त्र हैं, भगवत गीता है, बताती हैं हम सभी जो दुनिया में आए हैं भगवान के धाम से आए हैं, हम सभी भगवान के धाम से आए हैं। अपना एक जगह है जो भगवान माता पिता अपने हैं, जो बोलते हैं तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। संस्कृत में बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। आगे क्या बोलते हैं? त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये जो बोलते हैं, किसको बोलते हैं? भगवान को बोलते हैं। देखिए, ये बातें केवल बोलने के लिए नहीं है, बस बोलना है सर, ये गाना है, बस प्रेयर शेड्यूल में दिया गया है, नहीं। ध्यान दीजिए, हम लोग बोलते हैं, जो सुनते हैं, उस पर विचार करना चाहिए, इसका मतलब क्या है, क्यों बोलते हैं, इसका पालन कैसे किया जाए। तो वेदों में बताया गया, अपनी गीता में बताया गया है कि हम सभी भगवान के बच्चे हैं, भगवान के अंश है। भगवत गीता में 15वें अध्याय का 7वां श्लोक दिया है। भगवान बताते हैं इस जगत में जितने भी जीव है, ये जीव कौन है, कहाँ से आए। ध्यान दीजिए, भगवान बोलते हैं मम अंशो जीव लोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। क्या बोल रहे हैं भगवान? मम एव अंश जीव लोके जीवभूत सनातनः। इस जगत में जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव, हम सभी भगवान के दिव्य सनातन अंश है। सनातन का मतलब होता है जिसका जन्म नहीं है, जिसका मृत्यु नहीं है। जैसे भगवान जो है अजन्म है, अमर है, वैसे हम भगवान के अंश होने के नाते अपना आत्मा का जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, हम नित्य है। देखिए बच्चों, आपको जीने की इच्छा है ना सर? क्या जीने की नहीं सर, हमें आनंद भी चाहिए, खुशी भी चाहिए, हमें बुढ़ापा चाहिए। किसी को बुढ़ापा चाहिए ना? बूढ़ा बनना चाहोगे? बूढ़ा बनना किसी को अच्छा नहीं लगता। देखो लोग जो है ना, 2-3 बाल सफ़ेद हो गए चिंता में आ जाते हैं, वो 2 बाल सफ़ेद हो गए तो काला करने में लगे रहते हैं। क्यों? बूढ़ा बनना किसी को अच्छा नहीं लगता। और बीमार होना अच्छा लगता है बच्चों को? तो थोड़ा कैंसर, टीबी अच्छा लगेगा, थोड़ा होना चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। क्यों? ध्यान दीजिए, देखिए, थोड़ा शांत बैठना, थोड़ा शांति से सुनना कितना कठिन हो गया है। दिस इज द कंडीशन ऑफ अवर लाइफ। बच्चों ध्यान दीजिए, इतने चंचल है, इतने अशांत है कि ध्यान से सुनने की भी इच्छा नहीं।
वो सेंस भी चला गया कि कोई बोल रहा है हमको, कोई बता रहा है, कोई सेंस नहीं है। दैट्स वाई दिस लाइफ साइंस इज इम्पॉर्टेंट। हम बच्चों को बायोलॉजी सिखाते हैं, फिजिक्स सिखाते हैं, केमिस्ट्री सिखाते हैं, कंप्यूटर साइंस सिखाते हैं, एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिखाते हैं, लेकिन जीवन के विषय में जब पता नहीं है तो सेंस नहीं है, कहाँ कैसे बैठना है, कहाँ कैसे सुनना है, तो ये समस्या है। साइलेंस, सीधा बैठिए, अच्छे से बैठिए, सीधा बैठिए, चलो झुके बूढ़े जैसे, सीधा बैठिए। नीचे बैठने की आदत नहीं हो, इस समय हम हमेशा बेंच पे बैठते हैं, तो मैं समझता हूँ, थोड़ा समय ध्यान दीजिए। साइलेंस, यस प्लीज, साइलेंस। कुछ बोलूं मैं? मुझे कोई बंधन नहीं है बोलने का, मुझे अपना जीवन का सुख मिला है, मैं अपने जीवन में सुखी हूँ, संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कोई सुनना चाहेगा तो मैं बताऊंगा। सुनने की इच्छा है आपको? तो भी ध्यान दीजिए, थोड़ा समय है, मैं समय पे समाप्त करने वाला हूँ, मुझे सब पता है टाइमिंग क्या होता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं बोल रहा था अपने जीवन के विषय में। हमें किसी को बुरा बनने की इच्छा नहीं होती, हमें किसी को बीमार होने की इच्छा नहीं, हमें हमेशा जीने की इच्छा है कि नहीं? आपको जॉब का दो ऑप्शन है, जॉब के लिए दो ऑप्शन है, एक जॉब है थोड़े समय के लिए, एक जॉब है परमानेंट, गवर्नमेंट सर्विस परमानेंट, एक जॉब है प्राइवेट कंपनी का थोड़ा समय के लिए जॉब है। कौन सा जॉब लेंगे बच्चे? हाँ, गवर्नमेंट एंड परमानेंट, है ना? जो प्राइवेट कंपनी का जॉब है और थोड़े समय के लिए वो लेंगे आप? नहीं लेंगे। तो क्या आप सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब और परमानेंट जॉब है तो वही ऑप्शन आप लेंगे, है कि नहीं? लेकिन बच्चों, जब अपना शरीर ही परमानेंट नहीं है, अपना शरीर ये टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए है, तो कितने समय के लिए सोचो, थोड़ा दिमाग लगाइए कि अपना शरीर कितने समय के लिए है। कोई जानता है? कोई जानता नहीं, वी डोंट नो। जन्म के साथ कोई डॉक्टर हमें सर्टिफिकेट नहीं दिया है कि बेटा आपका जीवन इतने समय के लिए है, ये डेट ऑफ बर्थ है, ये डेट ऑफ एक्सपायरी है। कोई देता है ऐसा? नहीं देता है। तो बच्चों, हमें सावधान होना चाहिए। क्यों? अपना जीवन का समय पता नहीं है कितना है, इसलिए जो समय मिला है वो टाइम पास के लिए नहीं है। नवोदय में जो समय मिला है बड़ा सौभाग्य है, उसका सदुपयोग लेना है। तो बच्चों, मैं बोल रहा था कि हमें किसी को बुढ़ापा, किसी को बीमारी, किसी को मृत्यु नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ये शरीर नहीं है, हमें शरीर में जो जीव है, आत्मा, जो भगवान का अंश है। वो बच्चों का डिनर का टाइम है, 5 मिनट ना बस। तो जो अंतिम 5 मिनट है, ध्यान दीजिए। देखिए, यदि हम थोड़ा समझेंगे इस चीज़ को, बेसिक चीज़ को, यदि हम जो है भगवान के दिव्य अंश है, तो भगवान की जो अनंत शक्तियाँ होती है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम पा सकते हैं, उससे हम संपर्क कर सकते हैं, उनसे शक्ति ले सकते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, वो बोलने की चीज़ नहीं, केवल लेने की भी बात है, समझने की बात है कि हम सभी भगवान के हैं। तो हमें भय नहीं होगा। जो बोलते हैं जगत के नाथ जगन्नाथ हम सबके साथ, तो फिर चिंता की क्या बात? चिंता की आवश्यकता नहीं है।
सर्वशक्तिमान भगवान जगन्नाथ हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में हैं। कौन से रूप में हैं? परमात्मा के रूप में हैं। हम जीवात्मा हैं, भगवान कौन है? परमात्मा। तो बच्चों थोड़ा बेसिक ज्ञान जो होगा कि हम जो है जीव, ये बॉडी नहीं है, बॉडी के अंदर जो पैसेंजर है, जीवन एक सफ़र है, बॉडी अपनी गाड़ी है, जो अपनी इंद्रियां हैं। इंद्रियां कितनी इंद्रियां हैं अपनी? 5 ज्ञान के लिए है और 5 कर्म के लिए है, टोटल 10 है। और मन जो है इंद्रियों का राजा है, किंग ऑफ द सेंसेस, माइंड। इंद्रियां अपनी चक्के हैं। लास्ट एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिए। इंद्रियां अपनी चक्के, गाड़ी किस पे दौड़ती हैं? चक्कों पे दौड़ती है। अपनी बॉडी इंद्रियों के अनुसार चलती है, या इंद्रियों से चलती है। पाँव है, हाथ है, आँखें हैं, कान है, अपना ये हॉर्न है, हॉर्न, गाड़ी का हॉर्न, अपना मुख। जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं होता है, जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं है वो चलाओगे? उसमें बैठोगे? वैसे ही अपने बॉडी में, ये बॉडी की जो गाड़ी है इसमें ब्रेक है मन, ब्रेक मन है। जो ब्रेक कहाँ लगेगा? अपनी सेंसेस के ऊपर, इंद्रियों पर। क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, ये भी सीखना है। क्योंकि बच्चे जो हैं गलत चीज़ देखते हैं तो मन बिगड़ता है, मन डिस्टर्ब होता है। ब्रेक लगाना है, सही चीज़ को देखना है, गलत चीज़ को नहीं देखना है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये सब ब्रेक लगाने की बात है। तो मन का ब्रेक लगना चाहिए। मन का ब्रेक कहाँ पे? सेंसेस के ऊपर। कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। ब्रेक लगाता कौन है गाड़ी में? ड्राइवर। अपने आप ब्रेक नहीं लगता। अपने जीवन की गाड़ी में अपना ड्राइवर कौन है? बुद्धि। जिस बुद्धि में ज्ञान होता है, सही क्या है, गलत क्या है, विवेक होता है। और हम कौन है इस गाड़ी में? गाड़ी के मालिक है, गाड़ी के मालिक, जो ड्राइवर को बताए कि हमें कहाँ जाना है, हमें कब जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो यदि हम समझेंगे कि बॉडी में हम जो जीव है, आत्मा, तो गाड़ी के क्या है? मालिक है कुछ समय के लिए। बुद्धि अपनी क्या है? ड्राइवर। बुद्धि को बोलना पड़ेगा, बुद्धि को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, ज्ञान देकर कि सही क्या है, गलत क्या है। वो अपना काम है, किसका? आत्मा का, जीव का। ये जीव क्यों है? ये जीव भगवान का अंश है। इससे क्या होगा? अपनी गाड़ी, जो जीवन की गाड़ी, सही दिशा में जा सकती है संयम के साथ। और जो अपनी समस्याएं होती है, मन भटकने की, यहाँ वहाँ निगेटिव थॉट्स की या अनावश्यक चिंता की, वो समस्या कम हो सकती है। तो समय हो चुका है, तो मैं मैडम को धन्यवाद देता हूँ और सभी शिक्षकों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें सेवा का मौका दिया। आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने शांति से सुना। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे लॉर्ड जगन्नाथ ब्लेस यू। विश यू ऑल, थैंक यू ऑल। Thank you so much, sir, for sharing the merits of your wisdom with our children. And this will definitely work for the spiritual upliftment, I hope. And you have also understood the significance of desire and action that you have to adopt without any action without expectation. So, thank you, sir. And I'd like to thank Principal Ma'am for organizing this fruitful session. I'd like to thank all the staff members who have been here since the beginning and cooperating with us. And I express my gratitude and thankfulness to all the children for keeping patience with us. Thank you. Thank you all.